ભક્તિ શબ્દ એ ભજ પ્લસ તિંગ એ બંને જોડવાથી બને છે. ભજ ધાતુનો મૂળ અર્થ સેવા થાય અને તિંગ પ્રત્યે સાર્થકતા એ સેવાને પ્રેમપૂર્વક કરતા થાય છે. આમ ભક્તિ શબ્દનો એકંદરે અર્થ પ્રેમ સહિત કરવામાં આવતી સેવા એમ થાય છે. હવે આગળ આપણે ગ્રંથના અધિકારીના વિષયમાં જોઈએ તો ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં નિરૂપિત પંચવિધ ભક્તિ માર્ગી અધિકારીઓના સંદર્ભમાં આપણે જોવાનો પ્રયાસ કરીએ તો પહેલું જે છે એ છે વ્યાવૃત અજાત વ્યસન કેવળ કથાપરાયણ જીવ. હવે અહીંયા વ્યાવૃત એટલે કે જે સેવા માટે સમય ન કાઢી શકતો હોય તેના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે વ્યાવૃત છે તેમને સ્વરૂપ ભજનને બદલે નામ ભજનમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. આ જ શ્રવણ ચિંતન કીર્તનની પ્રણાલી દ્વારા તેમનો બીજ ભાવ પ્રેમ આસક્તિ વ્યસનની અવસ્થાઓમાં વિકસિત થઈ શકશે. હવે બીજો જે જીવ છે એ છે વ્યાવૃત અજાત વ્યસન પરિચર્યા કથા પરાયણ જીવ. એ જીવે શું કરવાનું છે તો કહ્યું છે કે કથા ગુણગાન પ્રણાલી દ્વારા જ્યારે બીજ ભાવ દ્રઢ થઈ જાય અને ઘરમાં ભગવત સેવાનો નિર્વાહ શક્ય ન હોય ત્યારે એવા ઘરમાં રહી શકવું ભગવતીને માટે અશક્ય બની જાય છે. પણ ભક્તિ માર્ગે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાને માટે પણ જો ભક્ત પોતાની જાતને સમર્થ ન કરી શકતો હોય તો શું કરવું જોઈએ? તો શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં તેના માટે કહે છે કે ગૃહ ત્યાગમાં સંગ દોષ અને અન્ન દોષનો ભય હોય તો ગૃહ ત્યાગનો અનુકલ્પ ભગવાનની સેવા કથામાં પરાયણ ભગવતીઓની પરિચર્યા અને એના દ્વારા કરાતા ભગવત કથા ગુણગાનમાં પરાયણ થઈને રહેવું. હવે ત્રીજા પ્રકારનો જીવ છે એ છે વ્યાવૃત જાત વ્યસને ગૃહ ત્યાગી. ભગવાનમાં વ્યસન વાળો ભક્ત જો વ્યાવૃત હોય તો ઘરમાં સદા સર્વદા રહેવું ભક્તિ ભાવમાં ક્યારેક બાધક થઈ શકે છે. તે કારણે ગૃહ ત્યાગની પ્રશંસા કરી છે. આવા જીવને શ્રી મહાપ્રભુજી કથા પ્રણાલી દ્વારા જ્યારે બીજ ભાવ દ્રઢ થઈ જાય છે ત્યારે તેવાને ઘર છોડવાની છૂટ આપે છે. ચોથો છે કે અવ્યાવૃત અદ્રઢ બીજ ભાવ વાળો જીવ. આવા જીવને માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે સ્વધર્મના પાલન પૂર્વક ઘરમાં રહીને સેવા પ્રતિકૂળ ઉદ્યાનને છોડીને પૂજા અને શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વગેરેથી શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી તે બીજ ભાવને દ્રઢ કરવાનો પ્રકાર છે. અને પાંચમો છે એ છે કે દ્રઢ બીજ ભાવ વાળો જીવ. તો દ્રઢ બીજ ભાવ વાળા ભગવતીય જનને પણ એક ધાતુ ગૃહ નિવાસ ભક્તિનો વિનાશ કરનાર છે. માટે ઘર વગેરેનો ત્યાગ કરીને જે પુરુષ કેવળ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જ મનવાળો થઈને પ્રયત્ન કરે તે પુરુષ શર્મથી અધિક દ્રઢ પરમ ભક્તિને મેળવે છે. આ રીતે આપણે 5 અધિકારીઓ જોયા ભક્તિવર્ધિનીના. હવે આપણે આગળ જોઈએ ગ્રંથનું પ્રયોજન. તો પુષ્ટિ માર્ગમાં અંગીકૃત પરંતુ ભક્તિની વૃદ્ધિનો પ્રકાર નહીં જાણવા વાળા જીવો ઉપર કૃપા કરવા વાળા શ્રી આચાર્યજી સ્વપ્રગટિત માર્ગમાં પ્રવર્તમાન ભક્તિ તથા તેની વૃદ્ધિનો પ્રકાર કહેવાની પ્રતિજ્ઞા અહીંયા ભક્તિવર્ધિનીમાં કરે છે. ગ્રંથનો આપણે પૂર્વાપર સંબંધ જોઈએ તો આપણે આગળ ચતુશ્લોકી ગ્રંથમાં પંચમ પુરુષાર્થ કૃપા ભક્તિની અંતર્ગત આપણા ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષના વિષયમાં આપણો ભાવ આપણી સમજ આપણું વલણ શું હશે તે જોયું. ત્યારબાદ ભક્તિ વૃદ્ધિ માટે ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથ છે. ભગવત લીલા શ્રવણ ગુણ સંકીર્તન દુસદ ત્યાગ સેવા કથા પ્રભુના સ્થાનમાં નિવાસ આ બધા જે ભક્તિ વૃદ્ધિમાં બીજ ભાવે છે આ સાધનોથી ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે એ નિરૂપણ ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં છે. ગ્રંથની સંક્ષિપ્તમાં હવે વિવેચના કરું છું.
સૌપ્રથમ શ્રી મહાપ્રભુજી દ્રઢ બીજભાવવાળા પુષ્ટિ જીવો માટે ભક્તિની ફલાત્મક પ્રવૃત્તિનો ઉપાય બતાવતા કહી રહ્યા છે કે હવે સ્વમાર્ગીય ભક્તિની વૃદ્ધિ થવાના ઉપાયનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. સ્વમાર્ગમાં કહેવાયેલા સાધનો વડે તથા જે મર્યાદા માર્ગીય સાધનો છે તેનો પરિત્યાગ તથા સ્વમાર્ગીય શ્રવણ તથા કીર્તનનું પરિશીલન કરવાથી ભાવ દ્રઢ થાય ત્યારે ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રભુનું મહાત્મ્ય શ્રવણ કીર્તનથી થાય છે અને પ્રભુમાં સ્નેહ લૌકિકમાં ત્યાગની લાગણીથી થાય છે. આ બેથી બીજ ભાવ દ્રઢ થાય અને ભક્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. આ રીતે બીજની દ્રઢતાનો પ્રકાર કરીને અન્ય વ્યાકરણથી પણ તેમાં વિઘ્ન ન આવે તે માટે ભગવત ભજનરૂપ ઉપાયની દ્રઢતાની સિદ્ધિ માટે હવે આગળ અદ્રઢ બીજભાવવાળામાં અવ્યાવૃત અને વ્યાવૃત પુષ્ટિ જીવો માટે ભક્તિની ફલાત્મક પ્રવૃત્તિના ઉપાયો કહે છે. તેમાં સૌ પ્રથમ અવ્યાવૃત જીવ માટે બીજની દ્રઢતાનો પ્રકાર કહે છે. સ્વધર્મ કળાથી ઘરમાં રહીને સેવા વડે અને શ્રવણાદિક વડે લૌકિક કાંઈ પણ વ્યવહાર વગરના થઈ શ્રી કૃષ્ણને ભજે તેથી પ્રેમ થાય, પછી આસક્તિ થાય અને છેવટે વ્યસન થાય. હવે પ્રભુમાં દ્રઢ વિશ્વાસ થાય તો પ્રભુ જ તેનો યોગક્ષેમ ચલાવે છે, પરંતુ દ્રઢ વિશ્વાસ ન થાય તેવા જીવોને ગૌણ પક્ષમાં વ્યાવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા કરે છે. આવા વ્યાવૃત જીવોને ઉદ્યોગ કરવો પડે તો પણ ચિત્તને શ્રવણ વગેરેથી પ્રભુમાં જ રાખીને કરવું. આમ કરવાથી પ્રથમ હૃદયમાં પ્રેમ સ્ફુરે છે, ત્યાર પછી પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે, ત્યાર પછી પ્રભુમાં વ્યસન થાય છે. આવી રીતે વ્યસન સુધી ભાવ વધે ત્યારે બીજ ભાવની દ્રઢતા થઈ હોય તે કોઈ પણ પ્રકારની ભક્તિ માર્ગમાં ચલિત થતો નથી. આવા ક્રમથી સ્નેહ વધવાની રીતિ કહીને હવે સ્નેહ થવામાં બાધકરૂપ કહે છે. પ્રભુ સિવાય અન્ય વસ્તુઓમાં સ્નેહ, ઘરમાં આસક્તિ તથા પ્રભુ વિનાશ સમયનો નિર્વાહ આ ત્રણેય દોષ છે. આ ત્રણેય દોષ જ્યારે પ્રભુમાં એક ભાવ વધે ત્યારે એક બાધક માટે બીજો ભાવ વધે ત્યારે બાધક રૂપ બે દોષ નિવૃત્ત થાય અને જ્યારે પ્રભુમાં વ્યસન પર્યંત ભાવ હોય ત્યારે ભાવ વિઘાતક સઘળા દોષ જ દૂર થઈ જાય છે. આમ આ ક્રમથી એક ભાવની વૃદ્ધિમાં એક દોષની નિવૃત્તિ થાય તે ક્રમ કહે છે કે પ્રભુમાં પ્રીતિ થવાથી બીજા બધામાંથી સ્નેહનો નાશ થાય છે અને પ્રભુમાં આસક્તિ થવાથી ઘર વગેરેમાં અરુચિ થઈ જાય છે. જો તે પ્રતિકૂળ હોય તો અને ઘરમાં રહેલા પદાર્થ ભક્તિમાં બાધક અને અનાર્થનીય દેખાવા લાગે છે અને જ્યારે શ્રી કૃષ્ણમાં વેસન થઈ જાય છે ત્યારે જ ભક્ત કૃતાર્થ થયો એમ કહેવાય છે. આ નિશ્ચય છે. આવી રીતે પ્રભુમાં વ્યસન વાળાની યોગ્યતા, ભાવ તથા ફળનું નિરૂપણ કરીને હવે તેની આગળની વ્યવસ્થા કહી રહ્યા છે કે ભગવાનના વ્યસન ભાવ વાળો પણ ભક્ત જો વ્યાવૃત હોય તો ઘરમાં સદા સર્વદા રહેવું ભક્તિ ભાવમાં ક્યારેક બાધક થઈ શકે છે, કારણ કે ગૃહ ત્યાગની પ્રશંસા કરે છે. આવા ઉત્કૃષ્ટ ભાવવાળા જીવને પણ તાદૃશ ભગવદીયના સંગ વિના ઘરમાં જે સ્થિતિ છે તે તેના ભાવનો નાશ કરવા વાળી છે. તેથી તેણે ઘરમાં રહેવું ઉચિત નથી. તેથી તેવા ભાવવાળો ગૃહનો ત્યાગ કરીને મનમાં એક પ્રભુને જ મળવાની અભિલાષા રાખીને ભાવને વધારવાનો યત્ન કરે તો એમ કરતા કરતા સુદ્રઢ એવી પરાભક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુમાં અત્યંત ભાવ વધારવાથી ઘર છૂટી જાય તે પ્રકાર થયો. હવે અજ્ઞાનથી કોઈએ ઘર છોડી દીધું હોય તો ત્યાર પછી તેને શું કરવું કે જેથી તેનું કલ્યાણ થાય તે કહે છે. જેને વ્યસન સુધી ભાવ વધ્યો નથી એવા જીવ ભક્તિ વધારવા માટે ઘરનો ત્યાગ કરવામાં દુષમ અને અંતદોષ ઘણા જ બાધક છે. આવા અપક્વ ભાવવાળાને કોઈ દોષ ન લાગે તથા સમય પણ નિર્ગમન વ્યતીત થઈ જાય તેના માટે
તેણે હરિસ્થાનમાં રહેવું એટલે કે વૈષ્ણવ તંત્રોક્ત મર્યાદા માર્ગે મંદિરોમાં જે સેવાનો પ્રવાહ ચાલતો હોય તેવા પ્રભુના સ્થાનમાં પ્રભુના સેવા સ્મરણ પરાયણ ભગવત ભક્તોના સંગમાં નિરંતર રહેવું, તેમાં પણ પ્રભુમાં અને ભક્તમાં દોષ બુદ્ધિ ન થાય એવી રીતે નજીક અથવા છેડું રહેવું. આવી રીતે પ્રભુમાં અત્યંત ભાવ વધવાથી ઘર છૂટી જાય તેની તથા અજ્ઞાનથી ઘર છોડે તેની સિદ્ધિના ઉપાય તથા ફળ કહે. હવે પુષ્ટિ માર્ગીય સેવા તથા કથા તેમાં બેમાંથી એકમાં આસક્તિ રાખવા વાળાને પણ ફળની સિદ્ધિ થાય તે કહે છે. પ્રભુની સેવા અથવા કથા બેમાંથી એકમાં અથવા બંનેમાં જેને જીવન પર્યંત દ્રઢ આસક્તિ હોય તેનો કોઈ પણ પ્રકારથી નાશ ન થાય અને પુષ્ટિ માર્ગે ફળ તેને સિદ્ધ થાય તેમાં સંશય નથી એવું મારી બુદ્ધિમાં આવે છે એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. અવર સેવા શબ્દ અને કથા શબ્દને જોઈને કોઈ આસક્તિના અભાવમાં પણ ઉત્સાહથી સેવા કરે તો તેને બાદ થાય તે તથા તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય હવે કહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે સેવા કરવામાં દ્રઢતા ન હોવાથી ઉદ્વેગ થાય અને ભોગમાં આસક્તિ હોય કે સેવામાં બાધક છે એવા બાદના સંભવથી મારાથી સેવા બરાબર થતી નથી માટે ઘર છોડીને કોઈ એકાંત સ્થળે રહી ભગવત ભજન કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યાં આજ્ઞા કરે છે કે તેવી ઈચ્છાથી ઘરને ન છોડવું. એકાંતવાસ ઇષ્ટ નથી, હરિ સર્વ ઠેકાણે રક્ષા કરશે તેમાં સંશય નથી. આ બધી રીતે ભક્તિના વધારાનો પ્રકાર કરી હવે ઉપસંહાર કરે છે. ઉપર થયા પ્રમાણે જે વાણીમાં પણ આવી શકે તેમ નથી, પરંતુ જે અનુભવથી જાણવા લાયક ગૂઢ છે તત્વ જેનું એવી ભક્તિની વૃદ્ધિનું ભક્તિના ઉત્કર્ષનું શાસ્ત્ર નિરૂપિત કર્યું છે. આ શાસ્ત્રનો સમ્યક પ્રકારે અર્થાનુસંધાનપૂર્વક જે પાઠ કરે તેનું પણ તેમ કરતા નિષ્પાપ અંતઃકરણ થાય ત્યારે પ્રભુમાં દ્રઢ પ્રીતિ થાય છે. હવે આપણે પારિભાષિક શબ્દો જોઈએ તો પહેલો શબ્દ છે કે વ્યાવૃત. પહેલો શ્લોક છે એમાં બીજ ભાવે દરેક દુષ્યા ત્યાગા શ્રવણ કીર્તના આનો શું અર્થ કર્યો મને સમજાય જરા ફરીથી જોયું. જેની એમાં તો એટલે એના અર્થમાં એમ કરીને સ્ટાર્ટિંગ તો મેં એવી રીતે કરી છે સ્વમાર્ગમાં કહેવાયેલા સાધનો વડે જે મર્યાદા માર્ગીય સાધનો છે તેનો પરિત્યાગ તથા સ્વમાર્ગીય શ્રવણ તથા કીર્તનનું પરિશીલન કરવાથી ભાવ દ્રઢ થાય ત્યારે ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. વ્યાવૃત શબ્દનો આપણે અર્થ જોઈએ તો એ છે કે જે સેવા માટે સમય ન ફાળવી શકતો હોય તે. પછી અવ્યાવૃતનો અર્થ છે કે જે સેવા માટે સમય ફાળવી શકે તેવો જીવ. પછી આપણે પરિચર્યાને જોઈએ તો પરિચર્યા એટલે કે કોઈ સેવા કરનારને સેવામાં એટલે કે ભગવતીની સેવામાં કાં તો ઠાકોરજીની સેવામાં સહાયક થવું. એટલે ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સેવા ન કરીને પરોક્ષ રીતે સેવા કરવી, દાસાનું દાસ થઈને રહેવું એને આપણે પરિચર્યા એમ સમજીશું. પછી બીજ ભાવ તો બીજ એટલે જે પ્રભુદત્ત જીવનું વરણ કરેલું છે તે તો એ બીજને પ્રોટેક્ટ કરવું એ શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા કહી રહ્યા છે તેને બીજ ભાવથી સમજીશું. અને બીજ ભાવ એટલે ભક્તિના બીજરૂપ ભગવત કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલ પ્રભુમાં પ્રેમ એને આપણે બીજ ભાવ કહીશું. પછી અદ્રઢ બીજ તો જેનો બીજ ભાવ દ્રઢ નથી થયો તે. પછી રાગ વિનાશ તો ભગવત સંબંધ વગરનામાંથી રાગ એટલે કે પ્રેમનો વિનાશ એટલે અહીંયા અન્ય સાંસારિક વસ્તુમાંથી પ્રીતિનો નાશ થાય
એને આપણે રાગ વિનાશથી સમજી શકીએ. પછી સ્વધર્મ, તો પોતાના યથાશક્ય વર્ણાશ્રમ ધર્મને આપણે ફોલો કરીએ એને સ્વધર્મ કહીશું. પછી તાદ્રશી, તો પ્રભુમાં વ્યસન દશા જેની થઈ હોય તે જીવને તાદ્રશી કહેવાય. પરાભક્તિ, તો ઉત્તમ એવી ભક્તિ, એને આપણે પરાભક્તિથી સમજી શકાય. અને પ્રેમ, વ્યસન અને આસક્તિ એને સમજવું હોય તો પ્રેમ એટલે કે ભગવાનમાં પ્રેમ થવો, એટલે રુચિથી એક અવસ્થા આગળ જઈને પદાર્થો બધા જે નાશવંત પદાર્થો છે એમાંથી રાગનો નાશ થાય એને પ્રેમ કહેવાય. પછી વ્યસન એટલે કે ભગવાન વગર રહેવાય જ નહીં, એ વ્યસન અવસ્થા છે. અને આસક્તિ એટલે ભગવાન સિવાય બધા પદાર્થોમાંથી અરુચિ થઈ જાય એટલે આસક્તિની અવસ્થા આવી એમ કહેવાય. અને લાસ્ટ છે કે સ્નેહાદ રાગ, એટલે જેમ જેમ પ્રભુમાં પ્રેમ વધે તેમ તેમ અન્યમાંથી રાગનો નાશ થાય, એને સ્નેહાદ રાગ શબ્દથી સમજીશું. હવે આપણે આ ગ્રંથના સિદ્ધાંતના શાસ્ત્રોક્ત વચન સાથે એની સંગતિ જોઈએ તો આમાં કોઈ પારિભાષિક શબ્દમાં તમારા વચ્ચે કઈ હોય કે છૂટી ગયા તે તૈયાર છે? એટલે એમણે જે કીધું એનાથી મેં અલગ ડેફિનેશન લખી છે તો બોલું. पारिभाषिक शब्द, पहला भक्ति, महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वोत्तम स्नेह को भक्ति कहते हैं, अर्थात भगवान के महात्म्य ज्ञान को जानकर भगवान के प्रति सबसे ज्यादा स्नेह करना. उसकी मार्ग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होने वाला कृष्ण भक्ति शरणागति का मार्ग. उसकी मार्ग की बात हो रही है. हाँ, भक्ति ग्रंथ में पुष्टि मार्ग शब्द क्या आगे व्यसन, किसी चीज के बिना नहीं रहना. आसक्ति, अच्छी तरह से चिपक जाना. हमारा मन श्री ठाकुर जी की सेवा में चिपक जाए तो उसे आसक्ति कहते हैं. दृढ़ बीज भाव, जिसकी पुष्टि भक्ति भगवत प्रेम के रूप में अमृत, भक्ता शक्ति के रूप में पल्लवित तथा भगवत व्यसन के रूप में फलित होने लगी हो, उस जीव का दृढ़ बीज भाव होता है. और दृढ़ बीज भाव मतलब जो जीव व्यसन की कक्षा तक पहुंचा ना हो. देखो, इस विषय में सभी लोग थोड़ा ध्यान दो. हमें ग्रंथ का पारायण करना है, उसमें जिस क्रम से शब्द आते जाएं उनको हमें पारिभाषिक शब्द के रूप में अलग से लिखना. जैसे शुरू करें भक्ति. भक्ति वैसे व्यापक शब्द है, सभी जगह प्रयोग में आता है, पर पुष्टि भक्ति के रूप में महाप्रभु ने उसका एक विशेष अर्थ बताया है, तो हम उसे पारिभाषिक शब्द के रूप में कहेंगे. अब मैं बोल रहा हूँ जैसे बीज भाव, फिर त्याग, सर्वत्र त्याग है. भक्ति वर्गिनी में यहाँ जो त्याग कहा जाता है उसका अपना अर्थ है. अब जो अधिकारी की तालिका हमने सब लोगों को दी है, पंचवेद अधिकारी भक्ति वर्गिनी में वर्णित है, वो जो तालिका बनाई है वो श्री श्याम दादा की है. पर प्रियांशी ने जो अर्थ लिया है त्याग का, यहाँ वो मर्यादा मार्गी साधनों का त्याग, गृह त्याग ऐसा यहाँ उसने अर्थ नहीं लिया है. यद्यपि ये अर्थ भी किसी न किसी प्राचीन आचार्यों के द्वारा बताया गया अर्थ ही है, परंतु अब हमें ये देखना होगा कि यदि हम मानो किसी गोकुलनाथ प्रभु चरणों ने ये अर्थ किया हो, तब फिर कि गोकुलनाथ प्रभु चरणों द्वारा जो अधिकारी का निर्धारण किया गया है, उसका अर्थ बताया गया है, उसके अनुसार हमें पूरी व्याख्या समझानी होगी. उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि त्यागात श्रवण कीर्तनात् में श्री गोकुलनाथ जी की टीका को रिफर करें
और फिर जब तादृशस्यापि सत्यम गृहस्थान विनाशम का अर्थ है तब वो पुरुषोत्तम जी का अर्थ लगाते हैं। तो ये करेंगे तो विसंगति हो। तो अब जब हम इतनी गंभीरता से इन ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं, तब जिस मत को लेकर हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं उस मत में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अन्यथा विप्लव होगा। क्योंकि हम जब चार्ट समझा रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि पहला वाला और तीसरा वाला आगे जाके एक ही हो जाता है। एक स्वतः सिद्ध भाव वाला है, दृढ़ बीज भाव वाला, और एक साधन से जिसने अपने भाव को दृढ़ किया, तो वो दोनों एक कक्षा में आ जाते हैं। और अब अगर आपने मर्यादा मार्गी साधन का त्याग किया है, उस कैसा अर्थ लिया है त्याग का, तब आप ये बात नहीं कह सकते, समझे ना? तो थोड़ा इस विषय को गंभीरता से आगे। स्वधर्मतः, इसमें भी बहुत अर्थ हैं सभी व्याख्याकारों के। स्वधर्म शब्द में कुछ स्ववर्णाश्रम धर्म कहे हैं, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि स्वधर्म यानी भगवत धर्म, क्योंकि स्वधर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने भक्ति मार्ग को पकड़ा है उसके लिए तो वर्णाश्रम है, वो परधर्म है, देह धर्म है, तो वो तो उसने पहले ही छोड़ दिए। तो जिसका स्वधर्म जो है ही नहीं, उसको यहाँ महाप्रभु कैसे कह सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आप भगवत सेवा करें। तो हमें फिर से यहाँ समझना होगा कि हम कौन से व्याख्या कार्य किस मत को लेकर हम ये प्रस्तुति करते हैं, वरना वो व्याख्याकार जहां भी होंगे झगड़ेंगे। आगे अव्यावृत्त, पीछे व्यावृत्त, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, ये सब पारिभाषिक है। यहाँ कृतार्थता यानी व्यसनोत्तर कृतार्थता, भक्ति, परामधिका भक्ति, हरिस्थान, तदीय, भगवत शास्त्र, इतने यहाँ पारिभाषिक शब्द कहे जा सकते हैं। और भी हो सकते हैं पर मोटे तौर पर ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। अब इसमें सब में सभी व्याख्याकारों की अपनी अपनी व्याख्या है, इसकी परिभाषा उन्होंने दी है कि ये शब्द मात्र उन्होंने यहाँ कहा है तो इससे क्या अर्थ अभिप्रेत है। तो किसी एक व्याख्याकार को लेकर और हमें इन शब्दों का परिचय देना, ऐसे सभी ग्रंथों में समझ लेना है, ठीक है। कौन से शब्द छूट गए जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है? ठीक है, करो आगे। ગ્રંથના જે સિદ્ધાંત છે એના સંતૃપ્ત વચન સાથે એની એક સંગતિ જોઈએ તો જે અઢળ બીજવાળા અધિકારીઓને કીધું કે સત્ય અનુસાર સ્વધર્મ ચરણ કરતા ભક્તિ કરવી એ જે ઉદ્દેશ કર્યો છે કે એને ઘરમાં રહીને સેવા કથાપરાયણ રહેવું તો ભક્તિ એટલે ભક્તિની કૃતિ થઈ શકે છે। એનું આપણે ભાગવતજી સાથે કોટેશન જોઈએ તો ભગવતજીમાં ત્રીજા સ્કંદના 28મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકનું આ વચન છે કે સ્વધર્માચરણ સત્યા વિધર્માચ નિવર્તનમ દેવાલબ્ધેન સંતોષ આત્મવિચરણાર્ચનમ વિચરણાર્ચનમ। શક્તિ પ્રમાણે સ્વધર્મનું આચરણ કરવું અને વિધર્મથી દૂર રહેવું, દૈવથી પ્રાપ્ત તેથી સંતોષ રાખવો, આત્મજ્ઞાનીઓના ચરણની પૂજા કરવી। પછી આપણે બીજું વચન જોઈએ તો એ દ્રઢ બીજ લૌકિક દુસંગ વગેરેથી પણ નાશ પામતું નથી। આ ઉપદેશ માટે શ્રી ભાગવતજીનું 11મા સ્કંદનું 19મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં આવે છે કે મારી અમૃતમય કથામાં શ્રદ્ધા રાખવાથી વગેરે રૂપમાં પર્યાપ્ત સાધન જે કયા છે જેને અહીં
દ્રઢ બીજ ભાવ એમ કહ્યું એ દ્રઢત્વનું લક્ષણ યજ્ઞાથી નશ્યતિ આ શબ્દોથી શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. પછી આગળ જઈને શ્રી કૃષ્ણમાં વ્યસન થઈ ગયું છે તેવા ભગવત ભાવ વાળાને પણ નિરંતર ઘરમાં ન રહેવું જોઈએ. આ જે ઉપદેશ કર્યો છે એમાં કારણ કે એમના ભક્તિભાવનો વિનાશ કરનારું છે એમ કહ્યું છે. ત્યાં ભાગવતજીનું 11મા સ્કંદના 14મા અધ્યાયમાં 29 અને 30મા શ્લોકમાં આવે છે કે સંયમી પુરુષ સ્ત્રીઓ તથા તેમના પ્રેમીઓના સંગ દૂરથી જ છોડીને પવિત્ર એકાંત સ્થળમાં બેસીને ખૂબ સાવધાનીથી મારું ચિંતન કરે. સ્ત્રીઓના સંગથી તથા સ્ત્રી સંગીઓના સંગથી પુરુષને જેવો ક્લેશ અને બંધન થાય છે એવું કોઈ અન્યના સંગથી નથી થતું. એના વચનથી આપણે સમજાય છે. પછી આગળ છે કે દુષ્સંગ અને અન્ય દોષ એ ભક્તિ વૃત્તિમાં ઘણા બાધક છે. આ જે સિદ્ધાંત છે એમાં ભગવદજીના 11મા સ્કંદના 25મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક મળે છે કે ત્યાગ કરવા પર કાળ તથા ભાગ્ય દ્વારા કરાયેલા દુસંસર્ગથી તથા અન્નથી પ્રાણ પોષક અન્નથી ભક્તિ વૃત્તિમાં બાધકોની બહુલતા થાય છે. તેથી એ બાધકોની બહુલતાના હેતુથી મારું નિકેતન ભવન તો નિર્ગુણ છે. આ સમજાય છે. અને આગળ બીજના દ્રઢ થવાનો જે પ્રકાર અહીં કેમ કયો છે ભક્તિ વગેરેમાં, તો એ ભગવાને જ કહેલું શ્રુતિ વચન છે કે યમે વૈશ્ય વૃણુતે તેન લભ્યઃ, કે ભગવાન જેનું વરણ કરે છે તે જ તેને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અથવા તો તેને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. આ શ્રુતિથી નિશ્ચય થાય છે કે ભક્તને અંગીકાર કરીને આવી ભક્તિ આપવી એ ભગવાનને અધીન છે. હવે આગળ ગ્રંથના સિદ્ધાંતનું આપણે વર્તમાન સ્વરૂપ જોઈએ તો ભક્તિવર્ગની ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે ભક્તિનું વર્ણન કરવા નિરૂપણ કર્યું છે. તો ભક્તિ એટલે કે પ્રેમ સહિત સેવા, અને આવી ભક્તિનું વર્ધન થવું જરૂરી છે કે જે આજે એનાથી તદ્દન વિપરીત પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે ભક્તિના વર્ધન માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીથી શરૂ કરીને જે સાધનો બતાવ્યા છે તે કોઈ સાધનો આજે નામ માત્ર પણ આમ ફોલો નથી કરાઈ રહ્યા તેમ દેખાય છે કે તનુ વિદ્યા કરવાથી માનસી સિદ્ધ થાય, પરંતુ આ તનુ વિદ્યાની પણ આજે હવે છૂટી પાડી દીધી છે કે એટલી તનુજા કરે છે એટલી વિદ્યા કરે છે એ રીતે. પછી અસમર્પિત વસ્તુનો ત્યાગ, અન્યાશ્રય એ પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત મુજબ પાડવામાં આવતા નથી દેખાતા. ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં બતાવેલા જે સ્ટેપ્સ એટલે કે રુચિ, પ્રેમ, આસક્તિ અને વ્યસન, એમાં જે પ્રથમ કક્ષા છે રુચિ, એના તરફ આપણી દ્રષ્ટિ પણ નથી. એમ કે રુચિ જ નથી તો એને પારખ્યા વગર જ શરણાગતિ દીક્ષા પણ આપી દેવાઈ રહી છે અને સેવાની અનુકૂળતા છે કે નહીં એને જોયા વગર બ્રહ્મ સંબંધી દીક્ષા પણ આપી દેવાય છે એ રીતે. પછી અહીંયા જે રીતે ભક્તિવર્ધિનીમાં સેવાયામમાં કથાયામમાં એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવી રહ્યા છે કે સેવા ન લભે તો કથા પક્ષ પણ એકલો નિભાવી શકાય છે, તે પણ એટલો જ ફલાત્મક છે એ રીતે. પણ એ પક્ષ પર તો કોઈ ધ્યાન આપી જ નથી રહ્યું, એને તો છોડી જ દીધો છે કથા પક્ષને, કે જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કથાને પણ સેવા જેટલું જ ફલાત્મક બતાવે છે વ્યસન પર્યંત જયારે થાય ત્યારે. પરંતુ આજે પક્ષને પણ બધાએ ગૌણ જ બનાવી દીધો છે અને એના વિકલ્પમાં શ્રી ઠાકોરજીને પધરાવી ચરણ સ્પર્શની સેવા, માણિક ખીચડી ભોગની સેવા, દૂધઘરની સેવા, પછી અન્નસપની આદિ પ્રકારથી ઠાકોરજીને પધરાવી આપે છે. અને બાકીના કોઈ મનોરથો હોય તો એને દિગ્ગજાથી મંદિરમાં જઈને પૂર્ણ કરાવે છે. જે શ્રી મહાપ્રભુજી ભક્તિવર્ધિનીમાં સ્ટેપ્સ બતાવી રહ્યા છે કે રુચિ, પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસનના એ સ્ટેપ્સ તો નદારત જ થઈ ગયા હોય એમ લાગે છે. આજે જ આમે એક પ્રસંગ સાંભળવા મળ્યો કે સેવા તો સમજ વગર જ જાણે પધરાવી દઈએ અને પેલી જે બહાર જવાની, ફરવા જવાની જે બધી વૃત્તિઓ છે એ ઓછી નથી થતી. ભરૂચમાં એક જગ્યા પર ઠાકોરજીને
પર ડે 800 રૂપિયામાં પધરાવીને એમની સેવા થઈ રહી છે કે તમે નિશ્ચિંતતાથી ફરવા જાઓ, હવે પ્રભુની સેવા કરીશું. તો આવા પણ ધંધા ચાલી રહ્યા છે. તો એટલે આ જીવ પોતાના અહંકારને પોષવા માટે જાણે સેવા તો કરી જ નથી રહ્યો, પણ અહંકારને પોષવા, લોકોને બતાવવા માટે આવી રીતે ઠાકોરજી પધરાવે છે. પણ આવી જગ્યા પર મહાપ્રભુજીએ કથાપક્ષનો પણ ઓપ્શન આપ્યો જ છે. જો તમારાથી સેવા નથી થઈ રહી તો તમે કથાપક્ષ કરો અને તમે એ જ ફળને પ્રાપ્ત કરી શકો છો, જે સેવા અને કથા બંને કરીને પણ કીધું છે. તો અને જે સેવા પણ કરી રહ્યા છે એને પણ એ સમજવું એટલું જરૂરી છે કે આપણા અનુસરમાં કથાપક્ષ કરવાનો છે. એવું નથી કે સેવા જ કરવાની છે. તો મહાપ્રભુજીને આજે સિદ્ધાંત છે અહીંયા એ અત્યારે આ રીતે ન પડાતા હોય એમ લાગે છે. ગોવિયાના ગામમાં દુતારા રૂપિયા ન મળે એ કહેવત છે. યદ્યપિ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જ્યારે સંયુક્ત પરિવાર નથી રહી ગયા અને નાના નાના કુટુંબ પરિવારોમાં લોકો હવે રહેતા થઈ ગયા, ત્યારે પોતાના માથે વિરાજતા ઠાકોરજી એમને આવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ક્યાં પધરાવવા એ એક પ્રશ્ન બહુ મોટો છે. પણ બધા પોતપોતાની રીતે એનું સમાધાન તો વિચારતા જ હોય છે. જેમ આપણે બચ્ચા જણી તો આકસ્મિક પરિસ્થિતિમાં બચ્ચાઓને આપણે ક્યાં મૂકીને જઈ શકીએ કે જ્યાં એમનું પાલન પોષણ આપણા ઘરમાં થતું કોઈથી થઈ શકે, એ વિચાર દરેક માતા પિતા કરતા જ હોય છે. બહુ ઇમરજન્સી આવી જાય તો પણ એનો રસ્તો કઈ ને કઈ કાઢતા જ હોય છે. ચાહે તો સાથે લઈને જાય તો ઘરે કોઈ એક વ્યક્તિ એના માટે પોતાના નિકટ જે જનો છે ને ત્યાં બચ્ચાઓને મૂકીને જાય. તો સંગત સેવા જે કરી રહ્યા છે એમણે પોતાના સેવી પ્રભુના સુખાર્થે આવા કુટુંબ પરિવાર વૈષ્ણવો જે હોય એમની સાથે આત્મીય સંબંધ રાખવા જોઈએ, નિસ્વાર્થ, કેવલ ભક્તિ માર્ગની દ્રષ્ટિ. અને જ્યાં એવું સંબંધ નથી હોતા ત્યાં પછી આ પ્રકારની સમસ્યા આવે છે. હજી નાના ગામોમાં એવું થતું હોય છે કે બધા કુટુંબ પરિવાર એટલા બધા એકબીજા સાથે ભણાયેલા હોય છે કે આખા ગામને સૂતક આપી જાય. તો તે સ્થિતિમાં સમસ્યા વિકટ થઈ જતી હોય છે. પણ જેમ આપણે જોઈએ છીએ કે જૈનો, વોરા કોમ્યુનિટી, બીજા પણ ધર્મ કે સમાજના જે લોકો એક પ્રકારની જીવનશૈલીને જીવતા હોય તો એ જીવનશૈલીમાં આવતી સમસ્યાનું સમાધાન પણ એ લોકો પોતાની રીતથી કાઢી લેતા હોય છે. એટલે જૈન પ્રકારનું ભોજન જ્યાં ઉપલબ્ધ ન હોય તો ત્યાં વૈયાવચ્ચ કેન્દ્ર કે એવું કંઈ કહેવાય છે, જ્યાં એ લોકોને એમના અનુકૂળ ભોજન પ્રાપ્ત થઈ જાય. તે જ રીતે જ્યારે એમના સાધ્વી મહારાજ સાહેબ કહેવાય છે એ લોકો વિહાર કરવા જાય ત્યારે પણ કોઈ ગામમાં એક જૈન હોય તો પણ ચાતુર્માસીમાં એમના સાધ્વી ત્યાં વિહાર કરતા હોય છે. તો દરેક સમાજની પોતપોતાની એક જીવનશૈલી છે અને એના અનુસાર એમાં સમય અનુસાર પરિવર્તન થાય તો પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય, એનું સમાધાન પણ વિચારી શકાય. આ જયારે આચાર્ય ભવનનું અહીંયા નિર્માણ થયું તે વખતે શ્રી શ્યામદાદાએ એવી આજ્ઞા કરી હતી કે ઠાકોરજીની સેવાના સંબંધમાં આ બધા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે તો કોઈ એવી વ્યવસ્થા આપણે વિચારવી જોઈએ કે કુટુંબ પરિવાર બધા ન હોય, એકાદ વ્યક્તિ હોય તો પણ એવા સંજોગોમાં એ પોતાના ઠાકોરજી ક્યાંક પધારી શકે. એ દૃષ્ટિથી આપણે અહીંયા આચાર્ય ભવનમાં નાના નાના મંદિરો એક રૂમમાં પધરાવી અને જેમને પ્રતિકૂળતા હોય તો ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવી શકે અને ત્યાં આવીને ઠાકોરજીની સેવા પહોંચી શકે સ્વયં, એવું વિચાર્યું. એવો ક્યારેય પ્રસંગ અહીંયા ઉપસ્થિત થયો નથી, પરંતુ એ વ્યવસ્થા એ દ્રષ્ટિથી જ આપણે અહીંયા બનાવી હતી. 800 રૂપિયા વાળું તો કોઈ કેલ્ક્યુલેશન
થતું નહીં, કેમ કે સ્વયં આવીને કરી જવાનું છે, તો એ કોઈ મુદ્દો હતો નથી. પરંતુ માની લો કે કોઈ વખતે એવી પણ સમસ્યા આવે છે, તો ઠાકોરજી પરિશ્રમમાં ન બિરાજે, એમની સેવા સુખથી કોઈ આવીને પહોંચે અથવા તો સ્વયં સેવા પહોંચે, એવા વિકલ્પો વિચારી શકાય. તો દરેક જગ્યાએ પછી આ પ્રક્રિયામાં કમર્શિયલ એજન્સી આવી જાય એ આપણા માટે હિતકારી નથી, જાગૃત સમાજ માટે હિતકારી નથી. નાના બચ્ચાઓમાં એવું છે, ગુડિયાઘર ને બધું હોય પરદેશમાં તો બહુ સામાન્ય છે. બચ્ચાઓને એને શું કહેવાય છે ત્યાં ડે કેર. તો મા બાપ બંને નોકરી કરતા હોય, બચ્ચાઓને ત્યાં મૂકી દે, પછી નોકરીથી પાછા આવે ત્યારે લેતા આવે. એ સમાજની જે સમસ્યા છે એમણે સમાધાન વિચારે છે. પણ જો ઠાકોરજીને એ રીતે પધરાવવા પડતા હોય તો એ સેવા કરતાની પોતાની અનધિકારિતા છે, એને કોઈ ગંભીર નિર્ણય લેવો જોઈએ છે. ક્યારેક એવું બનતું હોય તો એના વિકલ્પો વિચારી શકાય, પરંતુ જે લાંબા સમય સુધી થતું હોય તો પછી શ્રી મહાપ્રભુજી જેમ સાધન પ્રકરણમાં આજ્ઞા કરે છે કે વિક્ષેપાદ ભવા શક્ત્યા પ્રતિબદ્ધતા અત્યાગ્રહ પ્રવેશેવા પીડાની સર્વ તીર્થ પર્યટન શ્રેષ્ઠ. તો પછી સેવાનો આગ્રહ છોડી દેવો જોઈએ, કેમ કે તમે સેવા કરી નથી રહ્યા તો પછી ઠાકોરજી કોણ? ઠાકોરજીને પ્રશ્ન થશે કે હું કોના માટે? તો એવું અનાથાલય જેવું થઈ જાય એની સ્થિતિ ન થવી જોઈએ. તો એ વાત પર સારું ધ્યાન આકર્ષણ કર્યું અને પ્રતિમાર્ગી વૈષ્ણવ સમાજે આપણે બધાએ આવા બધા પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવું જોઈએ. તો હવે પલ્લાને કંઈક કહેવાનું બાકી હતું. श्री आचार्य को मेरा धन्यवाद प्रणाम, वल्लभ कुल परिवार को मेरा धन्यवाद प्रणाम और सर्व वैष्णव को जय श्री कृष्ण। जैसे मुझे इसमें ऐड भी करना है और प्रश्न भी है। तो भक्ति वर्धिनी का विषय पहले ये कहना था कि जो वर्ण के द्वारा भक्ति का बीज हमारे अंदर स्थापित हुआ है उसे कैसे फलित करना, भक्ति की वृद्धि के उपाय बताए गए हैं। हमारी ये ड्यूटी होती है कि हमको हमारी भक्ति को डेवलप करना चाहिए, तो उसके उपाय श्री आचार्य जी ग्रंथ में बता रहे हैं। ग्रंथ का पूर्वोत्तर संबंध देखे तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा सिद्धांत मुक्तावली में श्री आचार्य जी ने भक्ति वर्ण से होती है, भक्ति का बीज स्थापित किया होता है, यह बात कही। आगे नवरत्न सिद्धांत रहस्य मंत्रकरण प्रबोध में समर्पण से ही भक्ति फलित होती है, सेवा में आदि अलौकिक चिंताओं का भी निवारण किया। विवेक धैर्याशय कृष्णाशय में शरणागति भक्ति को डर करने का प्रारंभ है, वो समझाया। और चतुश्लोकी में कर्तव्य उपदेश, हमारा माइंडसेट, ड्यूटी और किस तरह का भक्ति मार्ग हमें बनना है वो समझाया। तो यहाँ तक भक्ति का जो सामान्य परिचय दिया गया है और अब जो भक्ति हृदय में है उसे कैसे अंकुरित करने के लिए यह ग्रंथ है, भक्ति को दृढ़ करने के लिए। आगे शास्त्र वचन में ऐड करना है। पहला सिद्धांत श्री आचार्य जी ने यह कहा कि प्रभु की सेवा में या भगवत कथा में जिसकी दृढ़ आसक्ति हो उसके बीज भाव का कभी नाश नहीं होता है। तो इसका आधारभूत वचन 12वें अध्याय के 6th और 7th श्लोक में ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवानी नचिता पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात जो सभी कर्मों को मुझे में अर्पण करके मेरे परायण रहकर अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए मुझ में ही भजते हैं, ऐसे मुझ में चित्त प्रवण भक्तों का मैं अलग समय में ही मृत्यु युग संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। दूसरा सिद्धांत, प्रभु सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, इसलिए प्रभु सभी पादपों को दूर करके भक्ति के भाव की रक्षा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तो इसका आधारभूत वचन
गीता जी के 1 श्लोक में और 12वें अध्याय में मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन संशय। अर्थात मुझे ही मन रख, मुझे ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके उत्तरार्थ तो मुझ में ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। इसका और एक शास्त्र वचन है जो 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 66 श्लोक में है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग कर मुझ एक में ही शरण आ जा, मैं तेरा सब पापों से मोक्ष करूंगा, शोक मत कर। आगे तीसरा सिद्धांत जो आचार्य जी लास्ट में उपसंहार में कह रहे हैं कि जो इस शास्त्र का संयम प्रकार से अर्थ सहित पाठ करे उसका अंतःकरण निष्पाप हो जाता है और प्रभु में दृढ़ प्रीति होती है। तो इसका आधार कुछ शास्त्र वचन भागवत जी के 11th स्कंद 20वें अध्याय के 29 श्लोक में આ પ્રમાણે મેં બતાવેલા ભક્તિ યોગ દ્વારા નિરંતર મારું પૂજન કરવાથી હું તેને સાધકના હૃદયમાં બેસી જાઉં છું અને મારા વિરાજતા તેના હૃદયની તમામ વાસનાઓ તેમના સંસ્કારો સહિત નષ્ટ થઈ જાય છે। महाप्रभु जी भी यही कह रहे हैं कि सम्यक प्रकार से पाठ करके अंतःकरण निष्पाप हो जाता है और प्रभु भी यही कह रहे हैं कि हृदय की सभी वासनाओं संसार सहित नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम आचार्य जी और श्री ठाकुर जी के वचनों में एक वाक्य का देख सकते हैं। अब आगे का सिद्धांत, जिस जीव को व्यसन पर्यंत भाव बढ़ नहीं है, अभी उसे ग्रोह छोड़ने में दुष्संग और अन्य दोष है। तो इसका शास्त्र वचन 13 अध्याय में गीता जी के 13 अध्याय में 6 to 11 श्लोक में हमें प्रभु ज्ञान और अज्ञान संबंध उसके संबंधी लक्षण कहते हैं, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, अहंकार एक्सेट्रा। तो उसमें से जिसमें भी ज्ञान के लक्षण जो आगे ठाकुर जी ने बताए हैं उसे निग्रह का त्याग करना, नहीं तो निष्फल होगा और कुछ समय के बाद वो जीव पाखंडी हो जाएगा। इसलिए श्री आचार्य जी ने भी मना किया है और भगवत के संग में रहने की आज्ञा की है। और वर्तमान स्वरूप में भी ऐड करना था। आज के समय में गृह में रहकर ठाकुर जी की सेवा करके श्रवण कीर्तन स्मरण में परायण रहने वाले बहुत कम वैष्णव है। इसके सामने हवेली में जाकर धन देकर सेवा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। सिर्फ वहां जाकर दर्शन करना और पैसे देकर प्रसाद लेना, इसे वह लोग भक्ति कहते हैं। यह शास्त्र में वर्णित ही नहीं है। धन किसी और का और तन किसी और का ऐसे सेवा कर रहे हैं, यह श्री आचार्य जी ने कहीं पर भी नहीं कहा है। आचार्य जी यह कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का तन, मन और धन होना चाहिए। जब तक हमारे आचार्य के सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक भक्ति के बढ़ने का कोई उपाय या स्कोप ही नहीं है। इस प्रकार हवेली में जाकर भक्ति की वृद्धि नहीं होने वाली बल्कि भक्ति का नाटक होगा। तो इसका यही समाधान है कि श्री वल्लभाचार्य जी विद्यापीठ में आकर षोडश अध्ययन को पढ़े और समझे। जी और वल्लभ की कृपा से हम सही रास्ते राइट ट्रैक पर हैं, तो बस जुड़े रहे। ये बात अच्छी है। विद्यापीठ में पढ़ो या विद्यापीठ के कंपाउंड में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो, मूल बात तो ये है कि महाप्रभु के वचनों से हमें जोड़ना चाहिए। विद्यापीठ तो उनके लिए है कि जिनको घर में अनुकूलता नहीं है, स्वयं इतना संयम नहीं है कि हम घर में इन सब चीजों को कर सके, प्रेरणा नहीं मिलती है, उन लोगों को सहायक है। आओ तो स्वागत है, पर न आओ तो घर में भी एक तो करो कि इसको तो नित्य भोजन की तरह हमें समझना है। विद्यापीठ उसमें सहायक हो सकती हो तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो उद्देश्य ये नहीं है कि घर छोड़ के आप विद्यापीठ में आकर बैठ जाओ।
पर बात अच्छी है। दूसरा, जैसे ये विषय कुछ वर्ष पहले मुक्ति पंचशती के पर्व का आयोजन हुआ था, उस समय श्याम दादा ने व्यापक तौर पर की चौपाटी में पंचशती का आयोजन हुआ था। उस समय सभी वैष्णव समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। वल्लभ भी गुरुजन भी बहुत इकट्ठे हुए थे, तब भी इस बात पर आपने ध्यान आकर्षित किया था कि मकान भवन जो है वो तो आज है कल नहीं रहेंगे, हम हैं आज है कल नहीं रहेंगे। गुरु की जो व्यवस्था है वो भी आज है कल नहीं रहेगी। जैसे सिखों ने अपनी गुरु परंपरा को बंद कर दिया, अब आगे कोई गुरु नहीं, उन्होंने कहा जो ग्रंथ है वही गुरु है। बहुत ही अद्भुत बात है। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में भी एक पंथ निकला, जय गोपाल पंथ। उन्होंने भी कहा कि अब कोई जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो लाल वरराय जी है, ये गुरु है। और उस समाज के जो 5 लोग हैं उपस्थिति, वो की डाली परिक्रमा करके कंठी पहन लेते और वो चल रहा है संप्रदाय। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि हम ये सोचे कि ये यावत चंद्र दिवाकर व्यवस्था बनी रहेगी, पर ऐसा कोई भरोसा किसी का किया नहीं जा सकता। पर जो कुछ भी हो, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो सदा सर्वदा बने रहने चाहिए कि मूल को। आगे कुछ भी हेरफेर हुई, कुछ गड़बड़ी हुई, तब भी ये मूल आधार है हमारा, नींव है हमारी, मूल वो यदि टिका हुआ है तो फिर से वहां से एक नया युग शुरू हो सकता है और वो व्यवस्था पुनर्जीवित हो सकती है। इसलिए आपने ये संकल्प लिया कि पंचशती में बहुत कुछ लोगों ने कहा कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जैसे इन दिनों में फैशन चल रही है बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की, तो टेक्निक वल्लभाचार्य की इतनी ऊंची मूर्ति होनी चाहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसी ने कहा कि टिकट छपवानी चाहिए, उन्होंने तपाल टिकट छपवा दी, जिसके ऊपर थूक लगा सबने चिपका दिया। तो सब लोगों ने जितनी अक्ल थी उतना उन्होंने महाप्रभु के नाम पर करने का प्रयास किया। किसने कहा कि सड़क का नाम महाप्रभु के नाम पर होना चाहिए, चौक का नाम होना चाहिए। अब फिर एड्रेस में आ गया कि फलाना फलाना बार एड्रेस वल्लभाचार्य मार्ग, दारू की दुकान महाप्रभु जी के मार्ग पे है। क्या गौरव बढ़ा उसका। तो लोग की बहुत निम्न सोच है। आपने ये कहा कि मूल ग्रंथ हमारे कायम रहने से, तो आपने संकल्प लिया और पंचशती को आज हम देख रहे हैं। इस वर्ष वो संकल्प श्री श्याम दादा का पूर्ण कितने वर्ष लगे, तो समझ लो कि 50 वर्ष में वो संकल्प चरितार्थ हुआ। उसमें आपको ये तो रंज है ही कि जिन्होंने जो ग्रंथ बहुत ही कम साधनों में, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में इतनी जल्दी से प्रकाशित किए, उनके केवल पुनः प्रकाशन में 50 वर्ष लग गए। तो आज हमारे पास वो शास्त्र ग्रंथ उपलब्ध हुए और पंचशती पर आपसे ने जो संकल्प लिया था वो आज पूर्ण हुआ। आज हम जो सांस ले पा रहे हैं वो तेलीवाला, मोहनलाल शास्त्री, वाणीलाल शाह इत्यादि जो प्राचीन वैष्णव हुए, उनके कारण हम ले पा रहे हैं कि हम कुछ भी माने। जो भी धर्म है उसकी पहचान उसका शास्त्र है। उससे पहले सभी शास्त्र हस्तलिखित ग्रंथों में वल्लभकुल के यहाँ उनके तोसा खाना में या सेवा में विराज रहे थे, कहीं किसी के हाथ तक पहुंचे नहीं थे, कोई पहुंचने देता भी नहीं था।
और इन्होंने बड़ी तपस्या करके उन ग्रंथों को वहां से निकाला, प्रकाशित किया, सबको उपलब्ध कराया। और एक बड़ी टीम थी जिन्होंने अपनी ओर से बिना किसी प्रेरणा के स्वयं स्फूर्ति से उन ग्रंथों का अनुवाद कार्य किया। तो पूरा अनुवाद से पूरे सुबोधनी षोडश ग्रंथ के तो 50 अनुवाद। इसी तरह से हरिराय वाल्मीकि वादन लगे, प्रस्थान रत्नाकर, पत्रावलंबन, सैन के सभी ग्रंथ, इन सब का मूल का प्रकाशन हो। उसके साथ साथ जो मासिक पत्रिकाएं चलती थी उसका अनुवाद कार्य, चर्चाएं, ये सब चलती है। अब आज पुष्टिमार्ग केवल उनका पुनः प्रकाशन करता रहे तब भी हमारे पास हमारा काम चल सकता है, नया कुछ करने की जरूरत। तो हमने आपसे ने ये पुरुषार्थ किया और अभी कल ही हमारे हाथ में जो अंतिम महाप्रभु का प्रकाशित जो ग्रंथ था द्वितीय स्कंद सहोदरी, वो आपके यहाँ से प्राप्त हुआ। तो उसके साथ आपने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूर्ण हुआ। तो संप्रदाय को टिकाने वाली ये शास्त्र, पर फिर से शास्त्र यदि किताबों में रहे तो किताबों में ही टिकेगा संप्रदाय। जो अनुसरण कर रहे हैं वो उनका स्वाध्याय करेंगे, उनका विचार करेंगे, तब वो संप्रदाय हमारे भीतर चाहिए बनेगा। अब इन्होंने जो ध्यान हमारा आकर्षित किया कि महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में गृह सेवा न होने पर व्यावर्त में तो भगवत कथा, ये दो साधना मुख्यतया हमें बताएंगे। अब जिनसे गृह सेवा नहीं हो सके उनको केवल शरणागति की दीक्षा लेकर श्रवण कीर्तन पारायण होना चाहिए। उनको समर्पण पूर्विका सेवा का अनुकल्प मिश्री, दूधगर, फल इनमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि वो सेवा को विकृत करने वाला है। क्योंकि जिस सेवा आप तब कर सकते हो जब आप अपने सन्मुख विराजते प्रभु को साक्षात जानो। पर जिनको आप साक्षात जान रहे हो वो आपसे अधिक है, पर जब आप उनको मिश्री में टरका रहे हो तब तो आपने अपने से भी बदतर अवस्था में उसको रख दिया, तब वो आप उसको श्रेष्ठ कैसे मान सकते हो। आप जो नई भोग हो ऐसा भोग आप उनको प्रदान करो तब तो वो श्रेष्ठ होगा, तब आपका मन भी उसे उत्तम माने। आप जो भोग रहे हो उससे निम्न भोग उसको भुगा रहे हो, उसके प्रति कभी आदर आपके मन में नहीं आ सकता है, कभी उसके प्रति उत्तमता का भाव नहीं आ सकता। तो अपने से अधिक जब हम जाने, सबसे अधिक जब हम उनको जाने, तभी वो भगवान हमारा बना उसके भक्त। सीधा सा गणित, हमारा दिमाग इन सब चीजों को सोचता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब जिनकी सर्वसमर्पण पूर्वक सेवा होती है, ऐसे भगवत स्वरूप जब घर पधारते हैं उनके प्रति जितना अहोभाव होता है, और जो वैष्णव उसका जो भाव हो सो, पर यदि वो केवल मिश्री भोग धरता है तो उनके प्रति वो भगवान है ऐसा भाव भी नहीं आता है, वो कोई चित्र मूर्ति ही है ऐसा ही भाव, क्योंकि कुपोषित है, वो खुद अपुष्ट है भगवान, तो उनके प्रति वो अभाव नहीं आता। और जिस वैष्णव ने जो सेवा करता है उसने अपने ठाकुर जी को किसी समय किसी बात के लिए तरसाया नहीं है, उससे अधिक भोग जिसने भोगा नहीं है, ऐसे वैष्णव के द्वारा सेवित प्रभु होंगे तो पधारने पर वो दर्शन ही वैसे ही है। फिर हमारा वो साहस नहीं हो सकेगा कि वो जिस तरह से सेवित हैं उससे कम उपचार हम उनकी सेवा में कर पाए। इसलिए जैसे हमारे यहाँ ये परंपरा में हम वल्लभकुल में देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले जो दो भगवत स्वरूप विराजते थे, उसके बाद हमारे पूर्वजों जो नगर छठा सिंध में रहते थे और वहां पर 3 भगवत स्वरूप और श्रीधर जी के चरण पालिका विराजते थे। उनके बाद उनका कोई वंश वारिश रहा नहीं, तो उन्होंने संदेश भेजा कि अब आप, एक संदेश उन्होंने अहमदाबाद भेजा था, फिर हमारे मांडवी में भेजा
कि भगवत स्वरूप आप कोई संभाल लो। अहमदाबाद कुछ संदेश देरी से पहुंचा, हमारे यहाँ से का मार्ग था लखपत से, तो हमारे यहाँ जल्दी पहुंच गया, तो वहाँ पर पूर्वज पधारे और वहां से ठाकुर जी को बताकर बांट लिया। अब हमारे यहाँ जो प्राचीन प्रणाली से सेवा होती आ रही थी जिस प्रकार से, तो एक सिंहासन पर 2 गादी जी विराजते थे, और 2 गादी जी में 2 स्वरूप 3 स्वरूप और पधारे, तो सिंहासन पड़ा हुआ, खंडपाठ चौकट साथ वो सब उसके अनुरूप हुआ। पहले 2 झारी जी आती थी, उसके बाद 5 झारी जी शुरू हुई, क्योंकि 3 स्वरूप और पधारे, उनकी सेवा में और कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। वहां जैसे विराजते थे इसी तरह से यहाँ विराज। राजभोग में हर वस्तु एक सजती थी, अब वो 2-2 सजनी शुरू हुई, 2 थाल, 2 दाल, 8 चार, 2 खीर, ऐसे ऐसे सब दुखना था, क्योंकि जिनके यहाँ से पधारे उनकी भाव से वो सेवा यथावत होनी चाहिए। वो ठाकुर जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ आकर मुझे किसी में चला लो, ऐसा वो कहें। शैया जी पधारे तो शैया जी भी 2 हो गए, यानी 5 शैया हमारे यहाँ होती थी ठाकुर जी, जो पहले विराजते थे वो स्वरूप अलग की अलग, और 2 शैया जी वो। हिंडोरा भी उसी तरह से 3-3 हिंडोरा होने लगे, अटरी में विराजते तब भी। तात्पर्य ये है कि जिसने जिस भाव से ठाकुर जी को की सेवा की है, वो यदि हमारे यहाँ पधार रहे हैं, तो ठाकुर जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने घर से किसी पराये घर में गया। तो वो पुष्ट ठाकुर जी दर्शन देते हैं, और जिसने अपने ठाकुर जी की सेवा ही ऐसी कुपोषित रूप से की है, ठाकुर जी भी कमजोर नहीं है। वो ठाकुर जी कमजोर नहीं है, वो उसके सेवक ने उनको कमजोर बना दिया। वो कुपोषित करके न ढंग से स्नान कराते हैं, न कोई स्वच्छ वस्त्र होते हैं, न ऐसे चमकदार खिलौना होते हैं, जंग लगे हुए काले काले खिलौना, कई दिनों से धूल साफ नहीं होती है, शैया की सेवा नहीं होती, बातें बचती नहीं है। तो दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी परिश्रम में विराजे। तो तात्पर्य ये है कि ये जो प्रणाली हमारे यहाँ शुरू हुई, गृहस्थ सेवा और भगवत कथा, जिनका सेवा में अधिकार नहीं है, सेवा लायक जिनका भाव नहीं है, उनको हमने जबरदस्ती सेवा बदलाई, सेवा का मार्ग है, तो उन्होंने सेवा को अपने स्तर पर पटक दिया। ठीक है, सेवा ही कर ले, हमारे ढंग से कर। आपको तो यही चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं, तो कर लेंगे, पेशेंट कर देंगे। कहीं बाहर जाएंगे तो 8 दिन के 8 घंटा या 8 गुनी सामग्री घर के ताला लगा के चले जाए, तो सब लोगों ने अपने अपने रास्ता खोज लिया। मूल बात यह है कि जिससे अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको उससे अधिक हमने दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। उसके बजाय जो कथा पक्ष है उसको हमें पुष्ट करना चाहिए। हवेलियां खोलने के बजाय सत्संग मंडल है, संकीर्तन भवन है, ये होने चाहिए कि जहां सब भक्तजन मिलकर भगवत संकीर्तन करें। नौकरों को रख दिया, नौकर है कर रहे हैं जैसे तैसे सेवा, या सेवा के नाम पे जो मजदूरी कर रहे हैं, और हम तमाशा देख रहे हैं। हम पुष्टि मार्गियों में ये भी योग्यता नहीं रही कि जैसे चैतन्य संप्रदाय वाले नाच गान करके और संकीर्तन करते हैं ठाकुर जी के साथ, हम संकीर्तन भी नहीं कर पाते हैं, उतनी योग्यता भी नहीं। और हम ऐसी मुझ पे दाव देते हैं कि पुष्टि मार्ग हमारा धर्म विश्व धर्म है, वल्लभाचार्य जगत गुरु। अरे क्या ठाक जगत गुरु है, तुम्हारा शक्ल क्यों देखो, फीके लगते हो। कहीं और समाज के सामने जाएं तो निस्तेज लगते, कोई पहचान ही नहीं है हमारी। उनकी औरतें भी तिलक लगाती हैं, हमारे आदमी लोग भी तिलक लगाने में शर्म से डूब पड़ते। तो कहाँ वो गौरव, कहाँ अस्मिता, किस बात का विश्व धर्म और कैसे जगत, सब
जुमले हैं। तो तात्पर्य ये है कि जो साधना आचार्य शरणों ने बताई थी, जो प्रमाण सिद्ध है, वो साधना को समझकर स्वीकार कर और उसे प्रमोट करना चाहिए। इसी बात को आप श्री ने पंचशती पर कहा भी था कि हम वल्लभ मंदिर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आचार्य चरणों के बैठक जी परापूर्व से स्थापित हैं ही। तो गुरु के सन्निधान में बैठकर उत्तमार्गी स्वमार्गी ग्रंथों का चिंतन करें, अध्ययन करें, प्रकाशन हो, पारायण हो। वहाँ जो कथा पक्ष के लिए महाप्रभु ने आज्ञा की है, उसके लायक एक माहौल हो, उपदेश की परंपरा की एक व्यवस्था हो, तो उन चीजों को हमें बढ़ाना चाहिए था। पर फिर से वही जो अभी उसका उदाहरण कुछ दिया कि 800 रुपये में काफी की सेवा की जा सकती है, तो ये बस वही आके ठहर गए, क्योंकि बनियों का मार्ग है, पैसे की भाषा ही बनिया समझता है। तो बनियों ने अपने ही ढंग से पूरा कमर्शियलाइज सेटअप प्रतिभा शुरू कर दिया। तो कथा को भी हम जीते नहीं रहे, कथा को हमने खरीदना शुरू किया। बैठा तो एक शास्त्री को बैठा बैठा कथा करेगा, कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठ जाए। देखो आप किसी भी कथा के चित्र, सब सेठिया लोग बैठते हैं, औरतें ऐसे आती है शादी में सजने के, शादी में आई हो ऐसे सच के बैठती है। अरे भाई भगवत कथा है, इस पे शादी जैसा श्रृंगार करने की आवश्यकता क्या है? उतनी फुर्सत तुमको मिली कैसे जब भगवत कथा चल रही है? तब ऐसे घंटे का ये साड़ी पहनूंगे, ये चूड़ी पहनूंगे, ये पहनूंगे, ऐसा विचार कैसे आया? तो वो भगवत कथा का प्रसंग ही नहीं है उनके लिए। उनके लिए सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, गॉसिप करना है, सब आए गए मेहमान से मिलना है, अच्छा अच्छा खाना है, जो महाराज कहेगा नाच लेंगे, रास लेंगे, बस उसी में चित्त बना रहेगा। और लोग हैं वो अपने बिजनेस कॉन्टेक्ट खोजते रहते हैं, ये सोचते हैं कि पिछली बार हम उसके यहाँ गए थे, वो आया कि नहीं, फोन करो उसको, क्यों नहीं आया अभी तक, हमारा मंडप है, हमारी कथा, हमारा प्रसंग है, कम लोग नहीं दिखने चाहिए। उसको उसकी प्रतिष्ठा की चिंता, कथा क्या चल रही है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये माहौल में जब हम सब कुछ खरीदने के लिए उतारू हैं, तो बेचने वाले को तो लाभ ही है, वो तो तैयार ही बैठा है, आप जो कहोगे वो बेच दूंगा। वो कथा भी बेच रहा है, प्रसाद भी बेच रहा है, ठाकुर जी की सेवा भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। तो उसीलिए ये पूरा माहौल बिगड़ा। कि हरिराय महाप्रभु ने ये भक्तिवर्धिनी का जो अंतिम श्लोक है, उसकी विवृत्ति में बहुत अच्छी बात कही है। इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व, यहाँ महाप्रभु ने इति पद का प्रयोग किया। और इति शब्द का संस्कृत में एक अर्थ होता है समाप्त। इति का एक प्रकारार्थक भी होता है, इति का उदाहरण भी होता है, हेतु भी होता है। उसी तरह इति शब्द जो है वो समाप्ति अर्थक भी होता है। तो महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी लिखकर कलम तोड़ दी। भक्ति की वृद्धि के इतने ही उपाय हैं जितने इस ग्रंथ में कहे गए हैं। इति शब्द समाप्ति अर्थ, ऐसे हरिराय महाप्रभु, ये समाप्ति। इस ग्रंथ में कहे गए प्रकार के अलावा और कोई प्रकार महाप्रभु को भक्ति की वृद्धि के प्रकार तय मान्य नहीं है। ये बात कहने के लिए जहां महाप्रभु ने इति शब्द कहा। अब यदि भक्तिवर्धिनी में आपको हरिराय महाप्रभु मानने हैं, तो भक्तिवर्धिनी में हमें ही खोज कर बताओ। भक्तिवर्धिनी में ये भंडोली भागवत खोज के बताओ, या माला पैरामणी खोज कर बताओ, कहीं दिख रही? महाप्रभु ने इसी से ये समाप्त कर दिया कि इसके अलावा और कोई प्रकार भक्तिवर्धिनी भक्ति की वृद्धि का हो नहीं सकता। तो अगर हम महाप्रभु के प्रति वफादार हैं, तो हमें जो भी उपाय करने हैं वो यहाँ से करने हैं। और यदि आप इतने बुद्धिमान हो, इतने समर्थ हो कि महाप्रभु ने जो नहीं कहा है उसको भी आप अपनी भक्ति वृद्धि के लिए कर सकते हो, तो फिर महाप्रभु की कंठी क्यों पहनते हो, उनको गुरु क्यों पहनते हो? तो अपना संप्रदाय चलाओ, तुम गुरु बन जाओ।
तो इन सब चीजों को हमें ध्यान से सोचना होगा, समझना होगा। ये जो चिंतन का क्रम चल रहा है उसमें ये वर्तमान संदर्भ, उसकी समस्या, उसका समाधान, ये विषय हम हर बार इसीलिए जोड़ते हैं ताकि हम इन सब चीजों को बारंबार विचारने का अवसर मिले, देखने का, सुनने सोचने का अवसर मिले। तो इन दोनों को पुनः अभिनंदन। बहुत ही आवश्यक विषयों को इन्होंने यहाँ छेड़ा। अवसरोपात भाई, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती खींच पकड़ कर ले आए, यहीं से ये सब बातें निकलती हैं। तो यहाँ पर अभी ये विषय अच्छा, हमने ये ग्रंथ में सभी भक्ति के वृद्धि के उपाय बताए आचार्य जी ने। तो ऐसा प्रश्न होता है कि भक्ति के विरुद्ध उपाय करने की आवश्यक क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर भगवान ने हमारा वरण किया है पुष्टि मार्ग में, और अगर हमें रुचि है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के बारे में जाने, अगर हमें प्रभु की भक्ति करनी है, तो वो भक्ति फलात्मिका कैसे होगी? फलात्मिका तो यहाँ जैसे भक्ति वर्गिनी में ये महाप्रभु जी ने ये सब उपाय बताए हैं, वो करने से ही तो हमें प्रेम, व्यसन, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, वो जो है ये रुचि कक्षा में अगर हम है तो रुचि से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा प्रभु से। हमारा भाव जब आगे और डेवलप होगा प्रभु में, आज तभी जाके हम आसक्ति, व्यसन पर्यंत पहुंच सकते हैं और प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम भक्ति की वृद्धि के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो वो फलात्मिका नहीं होगी हमारी भक्ति। जैसे अब आगे दूसरा क्वेश्चन है, शास्त्र में भक्ति की वृद्धि ऑलरेडी बताए गए, तो आचार्य जी को क्या जरूरत पड़ी ये ग्रंथ की रचना करने की? हाँ बताए, गीता जी और भागवत जी। षोडश ग्रंथ में जो भी ये सब महाप्रभु जी ने साधन बताए हैं, वो सारे उन्होंने खुद से ऐसा नहीं लिखे। वो महाप्रभु जी ऐसा ही कह रहे थे कि वो वेद शास्त्र के ही सब वचनों के आधारभूत ये सब मतलब जो उपाय है वो सब है। तो ये भक्ति वर्गिनी ग्रंथ में भी ये सब जो उपाय है वो शास्त्र और वेद सब जगह पे उसके अनुरूप सब वचन मिलते ही है। पर अब प्राथमिक कक्षा के जैसे हम सब है, वो डायरेक्ट तो शास्त्र पढ़ने नहीं जाते, वेद को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये कर्तव्य है कि हम प्राथमिक कक्षा में है षोडश ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ही हमें ये भक्ति वृद्धि के लिए क्या उपाय है जो भगवान ने भी कहे हैं तो हमें समझ में आ पाएगा। तो हमारे जैसे लोगों के लिए ही ये सब जरूरी है। मतलब ये ब्लेसिंग है महाप्रभु जी की कि हमें मिली है, हम समझ रहे हैं। हाँ ये ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेन आंसर ऐसा है कि गीता जी और भागवत जी में मर्यादा मार्गीय भक्ति के उपाय की वृद्धि के उपाय बताए हैं। दान, तप, व्रत, होम, स्वाध्याय, जप, कथा की पान करने से जिनका अंतःकरण निर्मल हो, वैराग्य है, ज्ञान को प्राप्त किया है, वो भगवत स्थान को प्राप्त करता है। तो ये सब जो वहाँ बताए गए हैं वो मर्यादा मार्गीय भक्ति के उपाय करेंगे तो हमें ज्यादा ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और मैक्सिमम कृष्ण में सायुज्य होगा। बट सबसे उत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, उनकी प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। तो पुरुषोत्तम लीला का अनुभव कराने वाली जो पुष्टि भक्ति है उसको समझाने के लिए श्री आचार्य जी ने ये ग्रंथ की रचना की। भागवत जी में भी कई प्रमाण वचन भी मिलते हैं जहाँ हमें भक्ति के लिए ही, भक्ति वृद्धि के लिए ही भगवान नहीं करते। हाँ तो बोलती हूँ है, बट हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम डिफरेंशिएट कर पाए। वो श्री आचार्य जी ने
किया है। कांवर जी ने भी भगवान ने खुद स्वयं ही सब कहा है, तो वो भी उसकी भक्ति ही हुई ना कि हम भगवान का जो अनादर नहीं करेंगे, भगवान ने जो कहा है वो भी तो हम सुनेंगे। मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, बट पुरुषोत्तम जी की टीका है। फर्स्ट श्लोक में ही तीन भक्ति की वो जो वचन है वो वहाँ उन्होंने कोट किए हैं कि जो भागवत जी में है। मेरे ख्याल से तीसरे स्कंद के वो वचन है, तो वो भी उसकी भक्ति के लिए ही है, वो मुझे ऐसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली समझाने के लिए आचार्य जी ने किया होगा। मतलब सब में तो कैपेसिटी नहीं होगी ना वहां जाके पढ़कर समझे। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में जब महाप्रभु ने स्वसिद्धांत विनिश्चयम प्रवक्ष्या ये उपक्रम किया, ये सभी ग्रंथ उसकी ही परंपरा में आ रहे हैं। वहां स्वसिद्धांत शब्द का अर्थ श्री गुरुचरण में कहते हैं शास्त्रार्थ निश्चय रूपम सुसिद्धांत निश्चय प्रवक्ष्या। तो प्रभुचरण का अभिप्राय ये है कि स्वसिद्धांत शब्द से कोई ऐसा अर्थ समझे। महाप्रभु यहाँ से अपना सिद्धांत, गुजराती में कहते हैं पोताना सु धोराजी, कई बोलते हैं धोराजी हलावे, तो अपनी जेब में से कुछ बात कह रहे हैं। इस तरह से महाप्रभु षोडश ग्रंथ में अपने सिद्धांत, मनकल्पित सिद्धांत कह रहे हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। वो जो सिद्धांत है उसका मतलब है स्वसिद्धांत, यानी शास्त्रार्थ विनिश्चय रूप स्वसिद्धांत। तो जो स्वसिद्धांत है वो शास्त्र का अंश ही है। इसीलिए तुमने प्रश्न तो कर लिया, पर तुमने इतने सब प्रमाण भक्ति वल्लभी के पोषक बताए, फिर ये सिद्धांत है वो इस भागवत के वचन से, ये सिद्धांत गीता के वचन से पुष्ट हो रहे हैं, तब तो फिर वह तो व्याघात हो गया। तुमने अपनी बात काट दी ना? नहीं काटी। नहीं, मतलब ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री आचार्य जी ने कृपा करके उसमें से हम डिफरेंशिएट करके जो पुष्टि भक्ति के उपाय है वो बताए। दो बात ये कहें कि शास्त्र में मर्यादा मार्ग बताया गया है, जो तुमने कहा कि दान व्रत तपो वगैरह से भक्ति वृद्धि होती है या भक्ति पैदा होती है, तो सभी की जगह ऐसा नहीं है ना। ये बात जरूर है कि उसकी भक्ति की वृद्धि और मर्यादा मार्ग की भक्ति की वृद्धि, ये भक्ति भी अलग है और उसकी वृद्धि का प्रकार भी अलग अलग है। हो सकता है कि जो शास्त्र पढ़ते हैं उनमें ये विवेक न भी हो, दोनों को एक समझ कर वो चले, ये हकीकत भी है। पर सबसे पहली बात ये है कि शास्त्र में ये नहीं है ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु भक्तिवर्धिनी ग्रंथ यदि न करते तब भी शास्त्र से भी भक्ति की वृद्धि का उपाय प्रसिद्ध है, जैसे नवदान और ब्रजभक्तो आदि का, और प्रत्यक्ष उनका लीला में हमें उदाहरण मिलता भी है। अब महाप्रभु ने फिर से ये कहा, उसमें एक इतिहास हमको वापस देखना होगा। ये जन ग्रंथ जिसके लिए कहा कौन सा मार्ग पड़ा है, ये जब उन्होंने पूछा पुरुषोत्तम जोशी ना, क्या हाँ तो अच्छे तक, तो पुरुषोत्तम जोशी ने जब पूछा तो महाप्रभु ने दोनों तरह के उत्तर दिए कि जिसको जो ठीक लगे वो उसके लिए पढ़ा है। मुझे पूछो तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जिसमें जीव कृतार्थ होता है। तो फिर भक्ति की वृद्धि का क्या उपाय है वो उन्होंने पूछा, आपने उसका समाधान दिया। अब ऐसी जिज्ञासा पुरुषोत्तम जोशी की जैसी किसी को भी हो सकती है, जैसे अर्जुन को सामने रखकर अर्जुन जैसी मानसिकता वाले भावी सभी दैवी जीवों के लिए भगवान का उपदेश है, वो काम आ रहा है। इसी तरह पुरुषोत्तम जोशी के समान जिनकी जिज्ञासा है, ऐसे सभी पुष्टि मार्ग में जिज्ञासा का समाधान हो जा रहा है। प्रियांशील जो का वो भी सही है कि हम सब कहाँ शांति पढ़ने जाएंगे, उसमें से उसका निचोड़ निकालने को भी हमें सही हो या नहीं हो। तो महाप्रभु ने जब ये निर्णय रेडीमेड दिया तब फिर
हमारा काम सरल हो जाता है। तो महाप्रभु के मन में ये बात तो है, क्योंकि प्राकट्य ही महाप्रभु का इसलिए हुआ, तो वो कार्य आपने किया है। तो ये जो प्रश्न तुमने किया था कि जब शास्त्र में है ही तो महाप्रभु को ये ग्रंथ प्रकट करने की क्या जरूरत थी, ये केवल भक्तिवर्धनी ग्रंथ के लिए प्रश्न नहीं, ये सभी के चतुर्श्लोक के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कह दिया था, फिर महाप्रभु जी को चतुर्श्लोकी की जरूरत क्या है। इसी तरह सिद्धांत मुक्तावली के लिए भी यही प्रश्न रहेगा। आगे वाले जलवेद पंचपद आने के लिए भी ये प्रश्न पूछना पड़ना। जब यहाँ सब जगह कहा ही गया है तो फिर महाप्रभु को ग्रंथ की आवश्यकता क्या। तो ये सभी उत्तर इसके सही है और ये प्रश्न भी अच्छा है, जिससे सबको इतना विचार करने का अवसर है। जी जी, आगे का प्रश्न। में गोपीजनों को हमने ऐसा देखा कि भक्ति की वृद्धि के लिए हमें श्रवण कीर्तन करना पड़ता है। तो व्रत में गोपीजनों ने तो श्रवण कीर्तन कहाँ किया था, फिर भी उन्हें सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गई? वहाँ भगवान का मतलब अवतार काल था वो, तो वहाँ तो भगवान ने स्वयं सबको भक्ति दी है, बट ये प्रभु का आन अवतार काल है, तो हमें भक्ति करके प्रभु को प्राप्त करना है। मुझे ये समझ में आता है। हाँ, ये सही है, पर इसका प्रॉपर आंसर देखें तो ऐसा मुझे लगता है कि गोपीजनों श्रुति की रुचाएं है, तो वो एक ऐसे अपवाद है और मनुष्य रूपे अवतरी है। तो श्रुति की रुचाएं साक्षात प्रभु के मार्ग में ज्ञान स्वरूप ही है और प्रभु ने उनके ऊपर निरपेक्ष कृपा की है। निरपेक्ष कृपा का अर्थ होता है जहाँ प्रभु सामने से कृपा करते हैं, वो जीव को चाहिए या नहीं चाहिए, प्रभु सामने से कृपा करते हैं और वो अनकंडीशनल कृपा होती है। और उसके सामने सापेक्ष कृपा भी होती है, जो मर्यादा होती है, जहाँ कैपेसिटी है साधन करता है बस और भगवान बदले में फल देते हैं। ऐसा समझ आए? आगे पूछूं? ये भी हमने देखा कि प्रभु में प्रीति हो तो फिर भी सॉरी, अगर हमें प्रभु में प्रीति हो फिर बाकी सब पदार्थ में स्नेह नहीं हो रहेगा। बट अगर प्रभु में प्रीति है बट फिर भी दूसरी चीजों में भी अभी हमारा मन जा रहा है और वहां भी स्नेह है, तो इस अवस्था को कैसे समझे, क्या करना? प्रभु में प्रीति है यानी कि प्रेम की अवस्था है, तो वो अवस्था ऐसी मतलब स्टेडी नहीं रहेगी कि हमें हमेशा प्रभु में प्रेम ही रहता है, हमें प्रभु का ही मतलब चिंतन रहता है और वो सब। वो एक मतलब स्टेज है कि पहले प्रेम की होगी, फिर आसक्ति, फिर व्यसन। तो जैसे तुमने कहा कि प्रभु में प्रीति है और हमें दूसरे सारी जगह में भी मन मतलब हमारा विचलित हो रहा है, तो हमारी वो जो आसक्ति की स्टेज है वो अभी तक नहीं आई है। हमारी वो जो सारे नाशवान पदार्थों में से वो ममता छूट जानी चाहिए, वो अवस्था हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें भक्ति वृत्ति के ऊपर करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे हमें वो भी अवस्थाएं प्राप्त होगी और बाकी सारे पदार्थों में से ये जो रुचि हमारी लगती है वो भी छूट जाएगी। मतलब विश्वास रखना चाहिए, वो भी होगा। इसको ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझे तो टग ऑफ वॉर जो गेम होती है, तो उसमें दोनों टीम्स होती है। तो अगर हम बीच में खड़े हैं और अभी हम तीनों बीच में खड़ा है और एक बाजू भगवान में आ सकती है और दूसरी बाजू संसार में आ सकती है, तो दोनों साइड से जो फोर्स है वो इक्वल होगा, तो वो किसी भी साइड खींचा नहीं जाएगा। जैसे भी फोर्स बढ़ जाएगा वो खींचा जाएगा।
आंसर क्या? तो ये आंसर दे रहे हैं तुम अपने प्रश्न का। हाँ, मतलब मैं और ऐड कर दूँ एग्जाम्पल। ठीक, जरासंध जैसे। हाँ, अब आगे का प्रश्न। हाँ। पहले ये बता कितने बजते हैं? 3-4 ही है और सिर्फ स्नेह को भक्ति कहा जा सकता है या नहीं? मतलब वो भक्ति जो है पर उत्तम भक्ति नहीं होगी। वो भक्ति वृद्धि के उपाय में अगर रुचि प्रेम और मतलब आसक्ति व्यसन, तो अगर उत्तम भक्ति ऐसा अगर हम बोल रहे थे तो वो तो व्यसन पर्यंत जो भक्ति होगी उसे ही उत्तम भक्ति कहेंगे। नहीं, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे हम प्रभु में जो प्रेम हो रहा है रुचि की वजह से उसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्नेह इज नॉट इक्वल टू भक्ति। क्योंकि आपने अभी ग्रंथ में समझाया ना कि स्नेह होगा फिर आसक्ति होगी फिर व्यसन होगा फिर भक्ति आएगी, तो स्नेह पहला स्टेप, उसे भक्ति नहीं समझ लेना चाहिए। यही कहा ना। वैसे ध्यान से ये समझो कि जो उसकी परिभाषा है उसमें महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। टेक्निकली तो स्नेह ही भक्ति है। महात्म्य ज्ञान तो पूर्व भावी होने से केवल स्नेह को प्रकट करने में सहायक होता है। तो भक्ति का पर्याय स्नेह ही। अब वो स्नेह सुदृढ़ और सर्वतोधिक होगा तो आसक्ति और व्यसन वाली कक्षा वाला वो स्नेह बन गया है। महाप्रभु जिसको जो आसक्ति और स्नेह व्यसन कहते हैं वो सुदृढ़ और सर्वतोधिक जो विशेषण भक्ति के लक्षण में दिए गए हैं उसी को समझाने के लिए कि जब वो आप सुदृढ़ होगा तो आसक्ति हो जाएगी, सर्वतोधिक होगा तो व्यसन हो जाएगा। तो स्नेह ठीक है। और यही बात महाप्रभु प्रभु चरणों ने भक्ति अंश ग्रंथ का बहुत अच्छी तरह को पीट कर समझाई। हाँ, जो अडल्टीज वाला जीव है उनके नहीं, सॉरी, जो महाप्रभु जी ने पहले आज्ञा की कि स्वधर्माचार पूर्वक घर में रहकर पूजा श्रवण आदि करना, तो वहां पे हम ऐसा दीदी ने भी अभी कहा था कि स्वधर्म शब्द से अलग अलग अर्थ होते हैं। कोई आत्मधर्म मानता है तो कोई देह धर्म। तो अगर हम हमारे केस में देखें जहाँ हम समर्पित जीवन जी रहे तो क्या होगा उस कारण से? भगवत सेवा परायण हमें रहना है, वो हमारा स्वधर्म है। यहाँ मेरी मिस्टेक हुई थी कि मेरा वर्णाश्रम धर्म ऐसा मतलब दूसरे टीका करके मत से मैंने लिख दिया था वो डेफिनेशन में, बट हाँ हमें तो भगवत सेवा परायण रहना है, वो हमारा स्वधर्म है। मतलब भगवत धर्म में ही हमारा वर्णाश्रम धर्म का पालन हो जाता है क्योंकि हमने समर्पण किया है। और इसका शास्त्र वचन देखे तो गीता जी के 4th अध्याय के 13 श्लोक में चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्म कर्म कर्तास्यपि माम दिव्य कर्तारम अव्ययम्। उसका अर्थ ऐसा होता है कि गुण और कर्म के विभाग के अनुसार श्री कृष्ण ने 4 वर्ण सर्जित किए हैं और श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि वही अकर्ता और अव्यय है फिर भी उन्हें कर्ता समझे हम। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम कि भगवान ने ही वर्ण का सर्जन किया है तो भगवान की आज्ञा मानकर करे तो वो भगवत धर्म ही हो जाएगा, किसी स्वर्ग की आकांक्षा से नहीं कर रहे।
तो फिर वर्णाश्रम वापस आ गया है। हाँ मतलब भगवत धर्म में करते हैं, उसमें ही वर्णाश्रम धर्म हो जाएगा। तो स्वधर्म का अर्थ भगवत धर्म करना या वर्णाश्रम धर्म करना, क्योंकि भगवत धर्म के लिए तो पूजा श्रवणादि शब्द दिया ही गया है। अब अगर हम पूजा श्रवण को यदि हम भगवत धर्म में ही कहेंगे तब फिर उसका और कोई अर्थ करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। यदि यथाशक्ति वर्णाश्रम धर्म करने पर मुख्य भगवत धर्म है, ऐसा यहाँ क्या समझ सकते हैं? ये देखो आज्ञा क्या करना है, बीजदार्ढ्य प्रकार वस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवण। बीज की दृढ़ता का प्रकार तो यह है, घर में स्वधर्म के आचरण पूर्वक रहते हुए घर को या गृहस्थाश्रम को पूजा और श्रवणादि से श्री कृष्ण का भजन करना। तो कृष्ण भजन है, कैसे करना है? कृष्ण की पूजा करना और श्री कृष्ण के श्रवणादि है नवदा, ये सब आपको करना। अब भजन पूजा और नवदा भक्ति, इसमें तो कोई भगवत धर्म बचा नहीं। अब स्वधर्म शब्द से भी यदि हम भगवत धर्म लेंगे तो अब कौन सा धर्म बच गया, ये प्रश्न होगा। उस शब्द का अर्थ क्या लें? यदि उससे भी फिर से वही अर्थ लेंगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो स्वधर्म शब्द से हमें जिस धर्म में भजन पूजा श्रवणादि नवदा मुक्ति न आते हो ऐसा कोई धर्म लेना पड़ेगा, तभी वो उस पद सार्थक होगा। इसलिए अधिकांश जो व्याख्याकार है उन्होंने इसका यही अर्थ लिया है, स्वधर्म का स्ववर्ण देह धर्म, तभी उसकी सार्थकता। और दूसरे ग्रंथों में जो आचार्य चरणों ने उपदेश दिया है उसकी संगति भी तभी होगी। जैसे बालबोध का मैंने कहा कि सदाश्रय तदीय तो बुद्धि किंचित समाचरित स्वधर्म भारत वही, तो सदाश्रय तदीयता अच्छी बात है। स्वधर्माचरण छोड़कर केवल करोगे तो हो सकता है कि जिसके भरोसे कर रहे हो उसने अभी पूरा हाथ आपका पकड़ा नहीं है तो बीच में अटक जाओ। तो ऐसा न हो उसके लिए, यानी एक पांव आपका अच्छी तरह से जम न जाए उससे पहले दूसरा पांव उठा मत लो। स्वधर्माचरण दृढ़ता से करते रहो और साथ साथ भगवत धर्म का पालन भी करो। जिस दिन तुम्हारा पांव भगवत धर्माचरण में दृढ़ हो गया फिर वहां से उखाड़ लो पांव अपना, कोई चिंता की बात, ऐसा अभिप्राय, समझे? आगे का क्वेश्चन, भगवान में व्यसन भाव वाला भक्त है जो व्यावृत हो तो वो घर में सदा सर्वदा रहता है, तो उसका ऐसा कहा कि उसके भक्ति भाव में बाधक हो सकता है, तो वो बाधक कैसे होगा? मतलब ऐसा समझे कि वो घर में डिस्ट्रैक्शन होगा तो होगा, और हम ऐसा अर्जुन करें कि नहीं घर में डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो फिर उसे त्याग करने की क्या जरूरत है, गृह त्याग। जैसे तुमने कहा कि वो भक्त को व्यसन हो गया है, अगर वो व्यसन पर्यंत है तो उसे घर में मतलब वो अनुकूल वातावरण न होने के कारण महाप्रभु जी ने यह आज्ञा दी है कि व्यसन पर्यंत जो जीव है, यानी जो दृढ़ बीज भावना में जीव है, उससे तो गुरु त्याग की आज्ञा की ही है। वैसे ही अभी तुमने जैसे बोला कि व्यावृत जी, तो व्यावृत में जैसे व्यसन हो गया है यानी कि वो जाति वैसे जीव है, तो उससे भी गुरु त्याग की आज्ञा इसीलिए दी है कि उसकी ये जो व्यसन दशा है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, उसका भाव दृढ़ तो हो ही गया है तो अब वो रह ही नहीं पाएगा नॉर्मल लोगों के साथ, तो इसलिए उसे गुरु त्याग की मतलब आज्ञा की गई है यहाँ। मतलब
वो व्यावृत्ति करते करते अगर करेगा तो उसका भाव की हानि होगी, ऐसा समझना तुझे? नहीं, भाव की हानि होगी वैसे तो नहीं होगा। अगर व्यसन पर वो जीव है तो वो काइंड ऑफ दृढ़, उसका बीज दृढ़ तो हो ही गया है, तो अब वो व्यावृत्ति भी कैसे करेगा? व्यावृत्ति भी वो नहीं कर रहा होगा ना, वो उसका तो व्यसन हो ही गया है। उसे प्रभु के अब दृढ़ता है कि वो सब कुछ योगक्षेम करने वाले हैं, तो अब वो व्यावृत्ति पहले करता था, पर अब उसके साथ जो उससे वो कथा श्रवण परायण वो रहा है, उससे ही तो उसे जाति व्यसन उसे था, और उसे उसको व्यसन हुआ है। तो अब वो व्यसन व्यावृत्ति भी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो चीज व्यावृत्ति कर रहा हो। मुझे इस विषय पर हाँ, जर्नलिज्म में पढ़े, बिल्कुल पत्रकार की तरह लप्पू लगा दिया, छोड़े अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो जिस दृष्टि से हमने 2 पार्टिसिपेंट और ये स्कीम रखी थी, वो इसमें सबसे ज्यादा सार्थक की। और सब लोगों ने तो शरण को सीखा भी, और सब लोगों ने यही सोचा था कि प्रेजेंट हम ही करेंगे, हमको कुछ करना नहीं है। तो जब उनके हाथ हिस्से में प्रस्तुति नहीं आई तो वो शरणागत हो, ये सब हो गया, हमको जो करना था। पर फलना अभिनंदन। तो तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकं त्यागं कृत्वा यस्तु तदर्थार्थः मानस। ये व्यावृत अदृढ़ बीज भाव वाला, घर में भगवत सेवा करने की अनुकूलता जिसको नहीं है, उसे श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा अपने भाव को बढ़ाने की करते हैं। अब ऐसे करते करते उसका भाव स्नेहासक्ति व्यसन के रूप में बढ़ा। व्यसन का तो मतलब ही यही है कि तद बिना स्थातुम न शक्य। अब उसके बिना रहा नहीं जाता। अब नहीं रहा जाता है, फिर जबरदस्ती भी उसको तुम पटक दोगे, क्या होगा? हम लोगों ने अनुभव किया है। हमारे यहाँ मांडी में गौशाला गांव के बाहर तालाब पर है, जो सब कहिया है वो ज्यादातर बाहर है। घर में गोबरा गो पूजन के लिए छोटे छोटे जो बच्चियां हैं, बछड़े, वो 2-2 की जोड़ी के साथ वो आ रहे थे। अब कभी ऐसा अवसर आता है कि उनको फिर से गौशाला में समय आने पर भेजना पड़ता है। एक को भेजो तो रस्सी तोड़ के दूसरा उसके पीछे पड़ जाए। अगर बाड़े में बांध दो, बाड़े में से निकल, बाड़े को कूद के तद बिना स्थान तुम न शक। ऐसा व्यसन है, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो जिसका भाव व्यसन पर्यंत श्रवण कीर्तन की प्रणाली से बढ़ चुका है, इतना भगवान के बिना रह पाना संभव नहीं है। तो हम भले ही कह रहे हैं कि तादृश्यापि सत्यम गेहस्थानम विनाशकम, ये तो हमको थर्ड एम्पायर बनकर सोच रहे हैं। तो वो तुमको पूछने भी नहीं आने वाला कि मैं जाऊं। हम सोचेंगे उससे पहले तो निकल गया। तो ये उसकी बात हो रही है जो निरोध लक्षण संन्यास निर्णय ग्रंथ में विराहानुभवार्थम परित्याग, उस अधिकारी की बात, ये उस कक्षा पर पहुंच गया। अब वो व्यावृत्ति करेगा नहीं करेगा। अब जब व्यसन सिद्ध हो गया, नौकरी भी छोड़ देगा, परिवार भी छोड़ देगा, समाज भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। यहाँ तक कि देहानुसंधान उसको नहीं रह जाएगा, खाना पीना तक छोड़ देगा, तो दूसरी व्यावृत्ति की कथा ही कहाँ है? समझे? ऐसे व्यसन ही हमको लौकिक उदाहरण में बहुत मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में। कोई खेल कूद का होता है, कोई संगीत का होता है, कोई पढ़ाई का होता है, कोई दोस्तों के साथ होता है, कोई करने वाला, ऐसे बहुत व्यसनी होते हैं। हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, वो तो अपना रास्ता निकाल सकता है। इस तरह से यहाँ भी समझना है कि
जिसका व्यसन पर्यंत भाव बढ़ चुका है, अब उसका रास्ता कोई रोकने समर्थ नहीं है। संन्यास निर्णय में तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको रोक सके, क्योंकि अब वो ऐसा रास्ता पकड़ चुका है कि अब उसे सीधी फल की ही प्राप्ति होगी, तो उसमें भगवान भी बीच में विक्षेप नहीं डालते। अस्तु। अस्तु। बहुत अच्छा ये प्रस्तुति रही भक्तिवर्धिनी की, क्योंकि ग्रंथ भी ऐसा था, सभी ग्रंथों से जुड़ा हुआ है और उसमें हमने इतना अच्छा विचार पल्ला ने करवाया, तो ये दोनों को अभिनंदन। अब यहाँ थोड़ा विराम करके पीछे आगे भी ग्रंथ